स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 कंप्यूटर का चैप्टर इंटरनेट। इसका क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन इंटरनेट। आंसर, द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। Most traditional communication media including telephony, radio, television, paper mail and newspaper have been reshaped, redefined or even bypassed by the internet, giving birth to new services such as email, internet telephony, internet television, online music, digital newspaper, etc. Online shopping has grown many-fold in recent times. Financial services on the internet affect supply chains across entire industries. The internet is also often referred to as the net as a short form of network. In 2005, there were only 16% users of internet worldwide. Now in 2019, there were about 54% users of internet worldwide. Common methods of internet access by users include dial-up with the computer modem via telephone circuits, broadband connection, Wi-Fi, satellite and cellular telephone technology 3G, 4G. Internet usage by mobile and tablet devices exceeded desktop worldwide for the first time in October 2016. The internet carries many applications and services, most prominently the World Wide Web, including social media, electronic mail, multiplayer online games, internet telephony, file sharing, etc. Email is an important communication service available on the internet. Pictures, documents and other files are sent as email attachments. Internet telephony is another common communication service made possible by the creation of internet. The internet allows greater flexibility in working hours and location. Educational material at all levels from preschool to postdoctoral is available from websites. Social networking sites such as Facebook, Twitter have created new ways to socialize and interact. While social networking sites were initially used for individuals only, today they are widely used by businesses and other organizations to promote their brands. Some governments such as those of North Korea, mainland China, Saudi Arabia and UAE restrict access to content on the internet within their territories. Sometimes the government may also enforce internet blackouts as done by Egypt government in 2011 as an attempt to stop mobilization for anti-government protests. No one actually owns the internet and no single person or organization controls the internet in its entirety. The bad effect of internet is that the internet has increased the risk of isolation, alienation and withdrawal from society. इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको क्लियर करती हूँ। आजकल इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट में नई सर्विसेज जैसे ईमेल, इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट टेलीविजन, डिजिटल न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा को जन्म दिया है। रिसेंट टाइम्स में ऑनलाइन शॉपिंग कई गुना बढ़ गई है। इंटरनेट पर फाइनेंशियल सर्विसेज ने सभी इंडस्ट्रीज की सप्लाई चेन को अफेक्ट किया है। इंटरनेट को शॉर्ट फॉर्म में नेट भी कहा जाता है। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कई कॉमन मेथड्स यूज किए जाते हैं जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वाईफाई, सैटेलाइट एंड सेलुलर टेलीफोन टेक्नोलॉजी। पहले इंटरनेट की यूसेज मेनली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के थ्रू होती थी, बट अक्टूबर 2016 में पहली बार डेस्कटॉप के कंपैरिजन में मोबाइल और टैबलेट डिवाइसेस के थ्रू इंटरनेट यूसेज वर्ल्ड वाइड बढ़ गई। इंटरनेट के थ्रू बहुत सी सर्विसेज हमें मिलती हैं। हम इंटरनेट पर दुनिया के किसी भी कोने में ईमेल भेज सकते हैं,
पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स और दूसरी फाइल्स को ईमेल अटैचमेंट्स के रूप में भेज सकते हैं। इंटरनेट से हमें इंटरनेट टेलीफोनी की सुविधा भी मिलती है। इंटरनेट से हमें वर्किंग आवर्स एंड लोकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण जब लॉकडाउन है तो वर्क फ्रॉम होम और बच्चों के लिए ऑनलाइन टीचिंग इंटरनेट के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। किसी भी सब्जेक्ट पर अगर हमें कोई लिटरेचर या इंफॉर्मेशन चाहिए तो वह हमें वेबसाइट्स पर मिल जाती हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इन्होंने इंटरेक्शन के लिए नए रास्ते दिखाए हैं। पहले तो सोशल वर्किंग साइट्स को केवल इंडिविजुअल ही यूज करते थे, पर अब बहुत सी फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स को सर्विस की ऐड इन साइट्स पर करते हैं ताकि उनका ब्रांड प्रमोट हो। ठीक है, कुछ कंट्रीज जैसे नॉर्थ कोरिया, मेनलैंड चाइना, सऊदी अरेबिया एंड यूएई अपनी टेरिटरीज में इंटरनेट एक्सेस पर कई पाबंदियां लगाई हुई हैं। कई बार गवर्नमेंट के द्वारा भी इंटरनेट ब्लैकआउट किया जाता है, जैसा कि 2011 में इजिप्ट में हुआ, क्योंकि वहां की सरकार एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को खत्म करना चाहती थी। हमने कई बार देखा है कि अगर कोई न्यूज़ इंटरनेट पर वायरल होती है तो उस देश या राज्य की सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है। एक्चुअली कोई भी दुनिया में इंटरनेट का ऑनर नहीं है और कोई भी सिंगल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से इंटरनेट को कंट्रोल नहीं करता। इंटरनेट का साइड इफेक्ट ये है कि हमने एक दूसरे के साथ बैठकर मिलना जुलना कम कर दिया है। हम सोसाइटी से दूर अपने घर के किसी कोने में पड़े व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम इंटरनेट की हेल्प से लाखों मील दूर बैठे अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड से व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, पर आज हमें ये पता नहीं है कि हमारे नेबर में कौन रहता है। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you.